Yes, give the heading as limiting reagent and excess reagent. Give the heading as limiting reagent and excess reagent. Now write the question inside that. Find the limiting reagent. Find the limiting reagent. First question, find the limiting reagent. Second question, find the excess reagent. Find the excess reagent. Third question, find the excess of the excess reagent in terms of moles and mass. Find the excess of the excess reagent in terms of moles and mass. Next question, find the moles. Next question, find the moles, molecules. Find the moles, molecules, mass, volume of the products. Again, I repeat the entire question. First question is find the limiting reagent. Second question is find the excess reagent. Third question is find the excess of the excess reagent in terms of moles and mass. And the last question is find the moles, mass, volume, molecules. Yasha, stop yawning over there. Molecules of the product form. Now, pay attention to the entire sum. You don't have to copy this, please. The sum is basically this way. This is my question over. You don't have to copy this. Please wait. You don't have to copy anything. I'll solve the entire sum. Then you will copy it, please. Step by step. First thing, I write the given data. Can I say the given data is N2 is 8 moles, H2 is 20 grams. Okay? Now listen to me, guys. I always convert everything into moles in the first step itself. So right over here, first step. Convert into moles. That's the first step that I have over here. ठीक है, चलिए बताइए कितने मोल्स हो जाएंगे? H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे बताइए? H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? Can I say whether H2 will be? Can I say basically I'll get over there 10 moles. क्लियर है? ये समझ गया? नेक्स्ट
Ashmi, can you go and wash your face, please? Yes, go and wash your face, please. The next thing. After this, the next thing. ये given data लिख दिया मैंने. अब I will use stoichiometry and remember to balance the reaction. ठीक है? The balance reaction will be, can I say, N2 plus 3H2 plus 2NH3. So right over here, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Now, I have the data of N2H2 both. मेरे पास दोनों का डेटा है, लेकिन सर फिर भी आपने लिखा स्टोइकोमेट्री यूज करो. स्टोइकोमेट्री यूज करके मैं कोई भी एक डेटा को x रख के निकालूंगा. सर मतलब क्या? समझो मैंने इसको 8 मोल्स यहाँ पे लिखा, इसको मैंने x ले लिया, इसको मैं कहूंगा स्टोइकोमेट्रिक मोल्स. क्या कहूंगा मैं? स्टोइकोमेट्रिक मोल्स. और यहाँ पे मैं एकदम सिंपल चीज लिख रहा हूँ, गिवन मोल्स greater than अगर गिवन मोल्स स्टोइकोमेट्रिक मोल से ज्यादा है, गिवन मोल्स अगर स्टोइकोमेट्रिक मोल से ज्यादा है, तो रिएक्टेंट को एक्सेस बोलूंगा कि एलआर बोलूंगा? think if the given moles is more than the stoichiometric moles, the exactly required moles, can I say क्लियर है आपको? ये दूसरा केस क्या होगा? given moles less than the stoichiometric moles, then the reactant is LR. समझा है ये? चलिए अब मैं यहाँ पे 8 रखा है, x रखा है मैंने इसको. कोई भी एक को मैंने यहाँ पे x ले लिया, देख लिया, इसको मैंने x ले लिया. आप इसको भी x ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा सेकंड रिएक्टेंट को x लेता हूँ. क्लियर है ये? What do I get the value of x as? मुझे x क्या है? 24. समझा कैसे 24 है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? 10 moles. नाउ जस्ट कंपेयर. स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ये है, ये मेरे स्टोइकोमेट्रिक मोल्स है, और ये क्या है? गिवन मोल्स. अब क्या है? कहने के स्टोइकोमेट्रिक मोल्स आर मोर देन द गिवन मोल्स. सो व्हाट विल आई राइट ओवर हियर? सेकंड केस क्या देखिए, गिवन मोल्स लेस देन द स्टोइकोमेट्रिक मोल्स, then the reactant is limiting reagent. Then the reactant is limiting reagent. ये कौन सा केस हो जाएगा बताइए? फर्स्ट केस की सेकंड केस? कौन सा केस हो जाएगा? Can I say the second case? Therefore, can I say H2
समझो आपको, आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व हो गया है। यूज फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड द एक्सेस रिएजेंट। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट निकाल रहा हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा है? यूज स्टोइकोमेट्री विद एलआर ओनली। मतलब एलआर क्या है सर? एलआर इज नथिंग बट, मैंने अभी निकाला n2 plus 3h2 स्क्वायर में, एलआर इज नथिंग बट h2 ओवर देयर। ठीक है, सो स्टोइकोमेट्री विद एलआर का मतलब क्या है? एलआर क्या मेरा ये है, इसके नीचे मैं लिखूंगा 3 मोल्स। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? अब डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है? डेटा यहाँ पे दिया है 10 मोल्स। देखिए आपको यहाँ से क्लियर है। सुनिए, अब स्टार्ट से सुनिए, मेरे अब तक एक और चीज बाकी है मेरा, एक्सेस ऑफ द एक्सेस रिएजेंट, वो भी निकाल दो। स्टार्ट से देखिए मैंने क्या किया, n2 और h2 जो भी डेटा दिया था उसको किस पे कन्वर्ट किया मैंने? मोल्स में। समझा है फर्स्ट स्टेप सबको? फर्स्ट स्टेप क्लियर है, मोल्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने स्टोइकोमेट्री यूज किया। कोई भी एक रिएजेंट को मैं x रखता हूँ, कोई भी एक रिएजेंट को मैं x रखता हूँ और मैंने x को निकाला, x मुझे मिला 24 मोल्स। फिर कंपेयर करता हूँ गिवन मोल्स के साथ। अगर गिवन मोल्स ज्यादा होगा तो वो रिएक्टेड एक्सेस में होता है, अगर गिवन मोल्स कम हुआ तो वो क्या हो जाता है? एलआर हो जाता है। अब ये केस में क्या है, ये केस में क्या है, सी ओवर देयर h2 इज द एलआर, n2 इज द ईआर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है मैंने यहाँ पे कि कोई भी समय अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, यू कैन ओनली यूज स्टोइकोमेट्री विद व्हाट? एलआर। इसके लिए मैंने h2 के नीचे 3 मोल्स लिखा, n2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। क्लियर है ये? नाउ आई गो टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज नथिंग बट, एक्सेस ऑफ ईआर कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखिए। आई डिडंट राइट द इक्वेशन, लिखा मैंने इक्वेशन। ईआर कौन सा है मेरा? ईआर कौन सा है? n2, उसके नीचे मैं x लिखा। ठीक है, x लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे इसका डेटा कितना दिया? 10 मिनट्स। समझा ये? अब मैंने x निकाला कि मुझे एग्जैक्टली इतना लगेगा, एग्जैक्टली 3.33 मोल्स लगेगा। क्वेश्चन में कितना दिया है? तो माय आंसर इज 8 माइनस 3.33। समझा आपको एक्सेस कैसे निकाला मैंने? क्लियर है क्या?
देखो आपको समझा नहीं है। पे अटेंशन टू दिस एंटायर। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो भी मेरा ईआर था उसको एक्स ले लिया, जो भी मेरा ईआर था मैंने उसको एक्स ले लिया। तो 1 मोल, 3 मोल, 10 मोल इसको एक्स लिया, मेरे को एग्जैक्टली कितना मिला, मुझे 3.3। अब क्या किया, मुझे एग्जैक्टली 3.33 चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 8 मोल्स। समझा है आपको? चलिए एक मिनट, मैं खाली कैमरा एडजस्ट कर। सुनिए, स्टार्ट से सुनिए क्या कहते हैं। गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट कर, ठीक है? ये स्टेप सबको समझा है? बाकी ना स्टेप समझाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टोइकोमेट्री यूज किया। ठीक है, स्टोइकोमेट्री यूज करके मैं कोई भी एक रिएजेंट को एक्स ले लेता हूँ। तो मैंने इसको एक्स ले लिया, एक्स लेके मैंने एक्स मुझे मिला 24 मोल्स। मुझे चाहिए 24 मोल्स 8 मोल्स के लिए, लेकिन मुझे क्वेश्चन में कितना किया, 10 मोल्स। तो कैन आई से स्टोइकोमेट्रिक मोल्स is more than the given moles? Can I say stoichiometric moles? This is nothing but the stoichiometric moles. ये जो मुझे मिला है ना, this is stoichiometric moles. Clear है ये? So stoichiometric moles is less than the given moles, hence the reactant is nothing but NR. इसके मैंने क्या लिया, H2 को NR ले लिया। ये स्टेप समझा है? ऋषि शाह समझा भी? Have you understood this step? Now after this, once I get the H, LR and the ER, I want to find the product. The product is always and always by what? The product you have to always find with respect to LR. हमेशा प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एलआर के रिस्पेक्ट। इसके लिए मैंने जो एलआर है यहाँ पे दिख रहा है, ये एलआर है मेरा, दिस इज द एलआर ओवर देयर। उसके रिस्पेक्ट में मैंने एनएचटी निकाला है। समझा है जी? हाँ। Then I cross multiply over here to get the number of moles of NH3. So I get 6.67 moles. I multiply this by molecular weight, which is 17 of ammonia, to get the mass. I multiply this by 6 into 10 raised to 23 Avogadro's number to get the number of molecules. I multiply this by 22.4 DAQ, assuming the question is at STP. Okay, and for ml I multiply by 22,400. After this, I want the excess of ER. Okay, पहले यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक समझा क्या आपको? I want the excess of ER. Excess of ER के लिए जो भी ER है उसको X ले लीजिए। जो भी ER है उसको क्या ले लोगे आप? X। आपने जैसे उसको X लिया, इसको X ले लिया आपने, आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके X का वैल्यू आपको मिला 3.33। ठीक है, 3.33 मिला। ठीक है, समझ में आया? अब गिवन डेटा कितना है, देखिए यहाँ पे 8 माइनस 3.33 किया है,
तो मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल्स व्हिच आर इन एक्सेस. सो गाइस, अगर आपको पूछे कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या बचेगा, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दो चीज बचेंगे. एक है ये, और दूसरा है ये दोनों रिएक्शन के एंड में वेसल में रहेंगे. समझा है आपको ये? चलिए अब स्टेप बाय स्टेप कॉपी कीजिए. जहां जहां पे मैंने अलग कलर से कुछ लिखा है, प्लीज आप भी अलग कलर यूज करना. स्टेप बाय स्टेप कॉपी कीजिए प्लीज. क्षितिज वापस ध्यान दे. 24 मुझे एग्जैक्टली चाहिए. 24 मुझे एग्जैक्टली चाहिए. अगर गिवन डेटा में यहाँ पे 24 से कोई भी वैल्यू ज्यादा रहता तो H2ER बन जाता. समझा क्षितिज? क्षितिज समझा कि नहीं है? हाँ सर. लेकिन वैल्यू से कम है, 24 से कम है. अगर 24 से अगर ये 30 35 होता तो H2ER होता. क्या होता है H2ER? क्योंकि ये 24 से कम है, इसके लिए क्या है LR. लिखूं क्या यहाँ पे मैं ये? जी सर. क्षितिज देख, तेरे को समझ में आया तो. समझा क्षितिज? Anyone else? Any other doubt? Please go ahead. Guys, please go ahead with the doubts. Any doubts in this, please go ahead. कुशल, इशित, साई, विराज, जो भी दिया है उसको मैंने x मोल ले लिया. यहाँ पे इसको x ले लिया. Okay. Now I find the value of x. This is what I exactly require. Okay, sir. मुझे 3.33 exactly चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया देख. 8 moles. Hence the subtraction is going to be the excess. Okay. मुझे exactly 3.33 चाहिए रिएक्शन के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना सफिशिएंट H2 है ही नहीं. Okay, sir. 3.33 will react exactly with 10 moles. Okay. Got it, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. Anyone else? Any other? ये कॉपी हो गया क्या?
Guys, the next question over there. Chaliye, this is the question over there. 280 grams of N2 and 0.5 moles of H2. Guys, first step क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप सब कुछ मोल्स में कन्वर्ट कीजिए आप. किराए से यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने. गाइस थोड़ा सा आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है. यही सम्स करने वाले पूरे लेक्चर में. कैसे वापस स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ज्यादा है. एलआर क्या है आपको गाइस? एलआर क्या आ रहा है आपको? चलिए आगे करते जाइए प्लीज. H2 should be the LR. H2 should be the LR. Shreya, Vruti, do you get this? After this, you need to find the amount of products formed. स्टोइकोमेट्री एलआर के साथ ही लोगे आप, H2 के साथ ही लोगे. How many moles of ammonia do you get? Okay, still solving it. ठीक है, कीजिए solve. Guys, has everyone got H2 as the LR, N2 as the ER? उसके आगे देखिए कैसे करेंगे हम. वापस मुझे यही LR आया है.
देखिए चाहिए है आपको 0.33 मोल्स। आया क्या ये? उष्मा, हैव यू गॉट दिस? किट पटेल, Swati Singh, have you got this as the answer? Tushar, Tanush, Sayam. Next, you need to find the excess of ER. You need to find the excess of ER. Guys, excess कितना है आपको? किंजल, आपका आंसर रॉन्ग है। Guys, have you understood this? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलिए ये पूरा क्वेश्चन आप करो। चलिए 9 moles of N2, 48 grams of H2.
LR क्या है ये क्वेश्चन में? LR क्या है? सबका आंसर गलत है जिन्होंने भी डाला अब तक। दोनों लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ओ ओ ओ यहाँ पे देखिए, एक मिनट सब लोग यहाँ पे देखिए प्लीज, यहाँ पे देखिए प्लीज। ठीक है, ये समझा, इतना तो समझा आपको। नेक्स्ट ये स्टोइकोमेट्री यूज करूंगा मैं यहाँ पे। ये कितना डेटा दिया है? देखिए ये आया क्या आपको? H2 should be the LR, guys. Guys, H2 should be the LR. Yes, ma'am. How do you get? So I had 24 moles of H2 and I had 9 moles of, oh sorry, No, that was it. like, you have to use the stoichiometric Yeah, coefficient. so I got 7 moles of N2. You got your mistake. Should be you. You have to Sorry? multiply. You have to multiply this 9 by 3. I did that. So you get 27 moles. Hence Yeah, H2 got, should. Hence H2 should be the LR. yeah, I got confused between XS and LR. ठीक है, ठीक. LR is the one which is completely used up, and excess is the one which is going to be remaining at the end of the reaction. Guys, do you get it as 16 moles? Do you get this as 16 moles? Do you get the excess as 1 mole? Guys, do you get the excess as 28 grams? What is it? आया क्या आपको ये आंसर? ठीक है, सॉल्व कीजिए. ओके ओके, स्टिल सॉल्विंग इट. ठीक है. Anyone who's got all of it right, all the things right, H, LR, ER, product, excess, सब कुछ right गया. Okay. Now, guys, look at the next question. Look at the next question over there. I can give you this entire question not in terms of moles and grams. Now, see.
चलिए, go ahead with this question. First step, convert it into moles. What is the LR that you get here? अब थोड़ा स्पीड बढ़ना भी चाहिए आपका. LR, do you get it as nitrogen? Do you get the LR as nitrogen? Guys, सुनिए यहाँ पे प्लीज सुनिए, एक बार सुनिए यहाँ पे प्लीज. इस क्वेश्चन में can I say given moles is more than the stoichiometric moles? Can I say in this question this scenario is true? Hello, do you get this? Hence, do you get H2 as the N2 as the LR? अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. Because N2 is the LR, you cannot use this. आप ये stoichiometry नहीं यूज कर सकते हो. You have to use the stoichiometry with N2. So यहाँ पे 3H2 आएगा. N2 is my LR, guys. Do you get 0.2 moles, guys? Do you get 0.2 moles?
Do you get it as 11.7 moles? ऐसा फिगर आ रहेगा 11.7 moles and 11.7 into 2 grams. 28 नहीं है 2 grams. Guys, can I change the equation now or same equation I should continue? Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने. Do you get the equation as 2H2 plus O2 gives you 2H2? अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे there is no excess no LR. अरे बैलेंस नहीं किया होगा आपने इसके लिए. So have I taken 20 moles? Oh, question मैंने गलत लिख दिया. Sorry, so sorry.
मैं रॉन्ग सॉल्व कर दिया, मैं सॉरी 10 मोल से पूरा सॉल्व कर दिया। ओ यस 10 मोल से अगर मैं 20 मोल से सॉल्व कर रहा हूँ तो नो एक्सेस रिएजेंट नो एलआर आता है। बराबर बराबर। चलिए 10 मोल से सॉल्व करते हैं। माय मिस्टेक ओवर देयर। हंस लो रिया तो मौका ही नहीं छोड़ेगी। 10 मोल से सॉल्व करें चलिए। 10 मोल से सॉल्व करके देखिए प्लीज प्लीज 10 मोल से सॉल्व कीजिए। एक्चुअली मैं 20 ग्राम देना चाहता था। अगर 20 मोल्स होता, सुनो सुनो, अगर 20 मोल्स होता तो इट इज एक्चुअली नॉट अ LrEr, इट इज स्टोइकोमेट्री प्योर। मतलब दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएंगे। और आपको अगर प्रोडक्ट निकालना है तो सर किससे निकाले, किससे भी निकालो आंसर राइट आएगा आपको। ये आप बस ना, अब कितना हंसेगी, बस हो गया ना। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज मुझे इसको इसका बैलेंसिंग बताओ क्या है। Yes, do you get this as आप लोग सब स्टेप्स लिखोगे, गिवन वो सब लिखो। फोर फाइव फोर सिक्स आया बैलेंसिंग। अब मैं काफी केयरफुली सॉल्व करना चाहूंगा, मिस्टेक ना हो। क्या आपको O2ER आया है? हंस हंस परमानंद हंस, बिल्कुल हंस, हंसनी हंस। क्या आपको O2ER आया है?
Hello, do you get these are the answers? फोर पॉइंट एट इंटू 30 ग्राम्स और y कितना आता है देखते हैं. 7.2 into 18 grams of H2O. देखिए क्या आपको ये आंसर आ रहा है क्या? 4.8 into 30 grams and 7.2 into 18 grams. Yes, y is 7.2. अब एक्सेस क्या है मेरा, उसको एक्स लेता हूं मैं. एलआर क्या है मेरा, ये O2 है कितना है? Do you get the excess as excess of ammonia as 3.2 moles? Just check. Do you get this 3.2 moles? Okay, ठीक ठीक सही है. Okay, great. गाइस ये क्वेश्चन देखें यहाँ पे, सुनिए. मुझे इसके मोल्स और इसके मोल्स चाहिए. आपको यहां तक करना होगा, एक्सेस नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इस क्वेश्चन में मुझे BA3PO4 ट्वाइस और NaCl, बेरियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड के मोल्स चाहिए. तो आपको एक्सेस का पार्ट नहीं करना है. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? मैंने आपको पूरा सम कैसे सॉल्व करना है बता दिया आपको. क्लियर है ये? चलिए सॉल्व कीजिए. पहले इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बताइए बैलेंस करते हुए. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बताइए बैलेंस करते हुए. यहाँ पे BA 1 है, यहाँ पे 3 है, हेंस आई मल्टीप्लाई हियर बाय 3. क्लियर है? मैंने 3 क्यों मल्टीप्लाई किया? बेरियम को बैलेंस किया. यहाँ पे क्लोरीन 6 है, हेंस आई मल्टीप्लाई हियर बाय 6. सो बेरियम बैलेंस हो गया है, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है. अब सोडियम के पास जाता हूँ. यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 3 है. यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 6 है, हेंस आई मल्टीप्लाई हियर बाय 2. सोडियम कितने हो गए यहाँ पे? 6. यहाँ पे भी 6. PO4 के कितने यूनिट्स है यहाँ पे?
2, यहाँ पे भी 2. So do you get it as 3, 2, 1, 6? You get it as 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6. सुपर सुपर. चलिए आगे सॉल्व करते जाइए. चलिए अब guys, do you get Na3PO4 as excess reagent? देखो. Sania, do you get Na3PO4 as the excess reagent? Okay. ये आप लोग को आ रहा है कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ? क्या है, मुझे समझ में आया कि मैं ही क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं ही सॉल्व करता हूँ, मैं ही चले जाता हूँ? क्या है, आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना? कोई आंसर ही नहीं डाल रहा है. आंसर बताओ. चलो आंसर क्या है बताओ. चलो किसको है जिसको ये आंसर आया? मुझे है 0.1 और 0.6 को है जिसको ये सेम आंसर आया. ओके. समृद्धि, क्षितिज, यशस्वी, यशेष, ऋषि, स्वाति, साइशा, विधि, नमन, यशवी, इशित, रिया. सुपर गाइस. क्या अलग स्पीड पे सॉल्व कर रहे हो, क्या बात है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए तो फिर.
खाली ग्राम्स निकालना आपको. एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है. What do you get the balancing here, guys? Al plus O2 gives Al2O3 में balancing क्या है आपको? ठीक है. What do you get the LR over here? What do you get the LR? Do you get the LR as aluminium? Has everyone got aluminium as the LR? Should I solve that? Okay. 510 is the answer, guys. 510. Do you get this? Basically, you get it as 5 moles. बराबर ना 5 moles आते हैं. Guys, do you get this? 5 moles आया आपको 510 grams. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. इसमें सिर्फ इतना ही निकालना है आपको. Have you got this answer, guys? 5 moles and
CaCO3 plus 2 HCl gives you CaCl2 plus H2O plus CO2. What is the LR that you get here? ये क्वेश्चन में LR क्या आ रहा है आपको? Right, very good, very good, very good. The LR is आया CaCO3 LR. चलिए आया ये. गाइस ये सब सम्स एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, सब के सब सम्स, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के सब सम्स आप प्रैक्टिस करोगे. क्लियर है ये?